Good afternoon, all of you. My name is Neha Soni. I'm a research scholar from Department of Commerce and Management. So I would like to, I'm here to introduce Dr. Jitendra T. Soni, sir, from the Department of Research. Dr. Jitendra T. Soni, sir, currently visiting researcher, Monash University, Melbourne, Australia. He is an associate professor and head Department of Geography, Government Arts College, Seeker. Visiting scholar at University of North Texas, USA. 19 years of teaching experience in government sector. MA, MPhil and PhD from JNU, New Delhi. And completed research project funded by ICSSR, New Delhi. Awarded UGC JRF research funding from Sussex University, UK to attend international research workshop at Rajendra Nagar, Bangladesh. Award to attend international conference at Tours, France. Data collection abroad award from ICSSR, New Delhi for field survey in USA. IUSSSP research funding to attend international conference at Cape Town, South Africa. ICSSR research funding to attend international conference at Shanghai, China. Vice Chancellor's a letter of appreciation for extraordinary contribution. TI Fellowship Award, Government of Rajasthan. Convener of National Conference 6-month online research methodology course, national and international webinars, state-sponsored short-term courses and regional seminars and conferences. Subject expert at various state public service commission and education board. Published 28 research paper and co-authored at book published by Rajasthan Board of Secondary Education for class 12th standard. Presented about 100 research paper in various national and international conferences in India and abroad. Delivered 3 keynote addresses and 16 invited talks. Delivering lectures in various university platform for PhD coursework and also at ASCs. So without any further delay, I would like to invite you, sir. And it is a great honor to me for inviting you. Am I audible to you, sir? Yes, you are quite audible. Thank you. Thank you very much for generous introduction. Uh, just I'll try to check that I'm able to share my presentation or not. So have you allowed me for sharing? Yes, sir. You can share your screen. Uh, but this is not enabled till now. Okay, fine. Just a minute. I'll just see that presentation is clear to you all or not. Yes, sir. It is visible, sir. It is It is visible. visible. Yes, sir. And I need to make any correction or it is absolutely okay? No, sir. It's absolutely okay. You can start. Okay, fine. Okay. First of all, I convey my sincere thanks to the organizers who invited me to deliver lecture in this PhD coursework. And the topic is on this formulation of scientific research problem, known science. So we will talk in a very lucid manner. First of all, please tell me that you are comfortable in English or shall I go bilingual? The language will be, sir, bilingual. Bilingual. Okay, fine. जी सर. ठीक है. जी. तो हम लोग बात करेंगे आज आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर. ठीक है, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम, हाउ वी कैन formulate a scientific research problem. See, this is a most fundamental part of the beginning of any research. This is the first step. So it is very important, and we must take care of very much about formulating a research problem, because that is going to decide the direction as well as the quality of our research. यदि पहले स्टेप पे ही गलती हो गई, यदि इसी को हमने बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, तो हमारा रिसर्च आगे जाके अच्छा होने वाला नहीं है.
तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये प्रेजेंटेशन जो है ये आप लोगों के लिए तैयार किया गया है, और ये ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है कि ये स्टूडेंट जो हैं ये बहुत जल्दी अपने सिनॉप्सिस के साथ अपना पीएचडी का काम शुरू करेंगे। तो इनके लिए बहुत जरूरी है कि ये जाने कि साइंटिफिक रिसर्च प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। ओके, स्लाइड्स आर विजिबल नाउ, आई कैन स्टार्ट। Yes, sir, it is visible. Okay, You can fine, start. fine. Yes, sir. See, this entire lecture is planned in such a way that first we will try to introduce that what is a research problem all about. Then we will discuss about the characteristics of research problem, sources of research problem, types of research problem, understanding of research problem with one or two practical examples, then evaluation of research problem, and finally we will discuss about the summary of all these things which we are going to talk in next 1.5 hours. See, when we talk about the introduction of research problem, we should know that what do we actually mean with research problem. It is a scientific area of research which needs to be addressed for fulfilling research gap in existing domain of knowledge. So that means हमारी research problem जो है वो किसी न किसी ऐसे मुद्दे को लेकर होनी चाहिए जो हमारा जो ज्ञान का स्तर है, जो आज हमारा नॉलेज का डोमेन है, उसमें और कंट्रीब्यूट करे। हो सकता है कि वो कोई बिल्कुल नई चीज हो सकता है कि वो पहले जो काम हुए हैं पहले उनसे हटकर कोई नया एक्सप्लेनेशन हो। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं कि हर रिसर्च फंडामेंटल रिसर्च हो, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का भी बहुत महत्व है। तो it is dealing with scientific area, so that is why the scientific temperament must be there in finalizing and formulating the research problem also. When we are going for formulating a research problem, then we must take care of these three aspects. One, that is clarity and understanding. Our research problem must clearly state about the statements of questions, right? I mean, जो भी रिसर्च प्रॉब्लम हम लेके चलें उसमें किसी तरह की कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, वो बहुत क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। आपकी रिसर्च प्रॉब्लम से ये पता लग जाना चाहिए कि इस रिसर्च में क्या हुआ है, ये रिसर्च किसके बारे में है। तो रिसर्च प्रॉब्लम यदि आपकी क्लियर नहीं होगी तो रिसर्च आपकी जो है वो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव और सिस्टमैटिक नहीं हो सकती। तो आप यदि रिसर्च प्रॉब्लम बनाने जा रहे हैं या रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आप जिस भी एरिया पे काम करना चाहते हैं उस पे आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और किस प्रकार से आपकी क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अपने एग्जिस्टिंग जो आपका जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है कैसे उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, उसकी बात हम कमिंग स्लाइड्स में करेंगे। तो पहला मुद्दा ये हुआ कि हम जब रिसर्च फॉर्मुलेशन की बात करें तो हमारी जो रिसर्च प्रॉब्लम है, हमारी रिसर्च प्रॉब्लम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ रिप्रेजेंट होनी चाहिए। नंबर 2, इट मस्ट बी फोकस्ड। फोकस्ड होने का मतलब ये है कि रिसर्च प्रॉब्लम वेग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम फोकस यदि नहीं रखेगी तो फिर आप जो रेलेवेंट आपके वेरिएबल्स हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत जरूरी है जब आप रिसर्च प्रॉब्लम को फाइनलाइज करने की ओर आगे बढ़ें तो आपका एरिया जो है वो पूरी तरह से फोकस्ड होना चाहिए, रिसर्च प्रॉब्लम में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये नहीं होता तब तक हम किसी भी सूरत के अंदर हम रेलेवेंट वेरिएबल्स तक नहीं पहुंच सकते, और रेलेवेंट वेरिएबल्स तक ही यदि नहीं पहुंच पाएंगे तो फिर हमारी रिसर्च जो है वो चौक हो जाएगी, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तीसरी जो बात है दैट इज ऑपरेटिव एंड रेलेवेंट। देखिए, कोई भी जब हम रिसर्च प्रॉब्लम के साथ यदि हम काम करना चाहें तो हमें ये पता होना चाहिए कि
इसकी फिजिबिलिटी है या नहीं है। ये इस बात को ध्यान में रख के किया जाता है कि रिसर्च जो की जा रही है वो एक इंडिविजुअल कर रहा है या उसके पीछे पूरी एक इंस्टीट्यूशनल बैकिंग है, एक पूरी टीम है, या फिर और भी किसी लार्जर डोमेन के ऊपर ये रिसर्च हो रही है, जैसे सपोज कोई स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उस रिसर्च को पूरी तरह से डायरेक्ट कर रही है। क्योंकि उसी के हिसाब से आप ये इवेलुएट करोगे कि आपके पास में कितना मैन पावर है, कितने रिसोर्सेज हैं, कितने टाइम में आपको प्रोजेक्ट करना है। तो इफ यू आर PhD स्टूडेंट, दैट मीन्स यू आर इंडिविजुअल एंड यू हैव द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड विद इन द stipulated time period you have to deposit your thesis. So the research problem which you are identifying, you must analyze that it is feasible for you in the given time frame as well as the resources which you have. दूसरी बात ये आती है कि रिसर्च प्रॉब्लम जो है उसमें नोवेल्टी होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई रिसर्च पहले हुआ उसी को आपने रिप्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। और सिग्निफिकेंट होना जरूरी है रिसर्च का। इन तीनों एस्पेक्ट पे अभी हम जो स्लाइड्स आगे बात करेंगे उसके अंदर फिर से डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, जब हम रिसर्च प्रॉब्लम के फॉर्मुलेशन की बात करते हैं तो ये तीन चीजें हमेशा हमें ध्यान में रखनी है। क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम, इट मस्ट बी फोकस्ड एंड it must have operative and relevant aspects, right? अब जब हम बात करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम की तो हम जानते हैं कि फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो किसी भी रिसर्च का सबसे पहला स्टेप होता है। यहीं से मान लीजिए कि यहीं से शोध का बीजारोपण हो रहा है, ठीक है। तो वी आर सिंपली स्टार्टिंग आवर रिसर्च फ्रॉम हियर। अब यहाँ पर यदि हम किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही करते हैं या यहाँ पर हम बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव होकर साइंटिफिक होकर काम नहीं करते हैं तो इसका इम्पैक्ट हमारी पूरी रिसर्च के ऊपर आने वाला है। So the choice and formulation of a suitable problem is one of the most important tasks for a researcher, which decides the direction as well as the quality of the research work. यहीं से ये तय हो जाता है कि आप जो रिसर्च वर्क करने वाले हैं उस रिसर्च वर्क की दिशा क्या होगी, दशा क्या होगी, उसकी गुणवत्ता क्या होगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप रिसर्च प्रॉब्लम कंसेप्चुअलाइजेशन से पहले बहुत बार सोचें और इसके ऊपर रिगरसली वर्क करें। और रिसर्च प्रॉब्लम को फ्रेम करते वक्त आप ये ध्यान रखें कि आप उन तमाम साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर ये काम कर रहे हो जिसकी बहुत अहमियत है। उसके बिना आपका शोध जो है वो सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब देखिए, आप जब रिसर्च प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, हम अभी ये बात करेंगे कि रिसर्च प्रॉब्लम कैसी होनी चाहिए, है ना। रिसर्च प्रॉब्लम में क्या गुण होने चाहिए। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम किसी भी रिसर्च का यदि मूल्यांकन करें तो एक गुड रिसर्च के लिए हमारे सामने क्या पैरामीटर्स होते हैं। एक गुड रिसर्च के जो पैरामीटर्स है उसमें हम बात करते हैं फिजिबिलिटी की, ठीक है, कि यदि एक अच्छा रिसर्च है तो वो इस बात को ध्यान में रखकर शुरू किया जाता है कि भाई हमारे पास में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, और उसके आधार पे हम लोग ये तय कर पाते हैं कि भाई वो पूरा का पूरा रिसर्च जो है वो हम अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। The second thing is that research must be novel and appropriate. Research वही है जो कुछ नया कंट्रीब्यूट करे, ठीक है। वो एक नया ओरिएंटेशन हो सकता है, एक नया डायमेंशन हो सकता है, ठीक है, वो एक नई थियरी हो सकती है, लेकिन ये जरूरी है कि रिसर्च जो है वो नोवेल हो, है ना। उसमें नयापन हो, है ना। वो पहले जो काम हो चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति ना हो। इंटरेस्टिंग एंड रेलेवेंट। इंटरेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आपकी रिसर्च जो है
वो बहुत अच्छी बाइंड होनी चाहिए, बहुत अच्छा उसका टाइपिंग होना चाहिए. That is obviously the part and parcel of your piece of work. But most important is that how much relevant the research is. तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब आप शोध कर रहे हैं और जब आप शोध समस्या का चुनाव कर रहे हैं, रिसर्च प्रॉब्लम का चुनाव कर रहे हैं, रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर रहे हैं, तो उस समय आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ योर रिसर्च, एंड दैट विल कम फ्रॉम व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ योर रिसर्च प्रॉब्लम. रिसर्च का ही एक और गुण है, दैट इज मैनेजेबल एंड सिस्टमैटिक. तो जब आप रिसर्च की बात करते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि भाई ये एक अच्छा प्रबंधन और एक अच्छा क्रमबद्ध तारतम्य शोध जो है उसका उदाहरण है. और लास्टली हम बात करते हैं एथिकल पैरामीटर्स की. तो एक अच्छा शोध वो है जो एथिकल पैरामीटर्स के ऊपर खरा उतरे. तो देखिए, जब आप ये देखते हैं कि एक अच्छे शोध में ये सारे पैरामीटर्स होने चाहिए, और एक अच्छा शोध जो है उसकी शुरुआत रिसर्च प्रॉब्लम से ही होती है, तो निश्चित रूप से अब जब आप ये देखेंगे कि एक रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते वक्त हमें क्या ध्यान रखने चाहिए, एक रिसर्च प्रॉब्लम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए. तो अब जब हम ये बात कर चुके हैं कि एक अच्छे रिसर्च के पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, तो अब हमें बात करनी चाहिए कि एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम या एक अच्छे रिसर्च प्रॉब्लम की फॉर्मुलेशन के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए एक रिसर्च प्रॉब्लम में. So now we are talking about the characteristics of good research problem. A good research problem must have, number one, significance and relevance. कोई भी रिसर्च बेमानी है यदि हम उसकी सिग्निफिकेंस और उसकी रिलेवेंस को एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा ह्यूमन रिसोर्स उसके अंदर लग रहा है, हमारे अदर रिसोर्सेज उसके अंदर इन्वेस्ट हो रहे हैं, और इसके बावजूद यदि रिसर्च जो है वो रिलेवेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है, तो फिर वो हमारा जो एग्जिस्टिंग डोमेन ऑफ नॉलेज है उसके अंदर हमें कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं देगी, और ऐसे केस में वो रिसर्च जो है वो हमारे किसी काम की नहीं होगी. जैसे आप ये देखते हैं कि एक तरफ रिसर्च होती है, मान लीजिए वायरलेस कम्युनिकेशन के ऊपर. वायरलेस कम्युनिकेशन के ऊपर कई हजारों रिसर्च हुई होगी, और उसके बाद जाके हमें मोबाइल कनेक्टिविटी एक टेक्नोलॉजी के रूप में मिली, जिसका हम आज व्यापक स्तर पे इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस एरिया की रिसर्च जो है वो धीरे 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 ह्यूमन कंफर्ट लेवल को बढ़ाने में कितना योगदान कर रही है. इस तरह हम देख पाते हैं कि किसी भी शोध की और शोध समस्या की रेलेवेंस क्या है. अब जैसे आज के समय मान लीजिए कि हम सोशियोलॉजी में मान लीजिए हम रिसर्च करते हैं, और हम रिसर्च करते हैं अबाउट द बिहेवियरल डायनामिक्स ऑफ मोबाइल यूज, है ना, कि भी मोबाइल यूज जो है वो किस तरह के व्यवहारिक बदलाव लाता है. ठीक है, मान लीजिए हम बच्चों पे इस तरह का अध्ययन करते हैं कि मोबाइल का जो एक्सपोजर है बच्चों के लिए, वो उनमें किस तरह के बिहेवियरल चेंजेस लाता है. तो ये रिसर्च जो है ये एक टेक्नोलॉजिकल जो हमारे पास में एक रिसर्च का डेवलपमेंट हुआ, और हमारे पास में एक वायरलेस कम्युनिकेशन जो है वो आया, और वो धीरे 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 बहुत व्यापक हो गया. अब हम ये देख रहे हैं सोशल साइंस के अंदर, सोशियोलॉजी के अंदर, कि उसका रिलेवेंस जो है वो इस संदर्भ में क्या है कि बच्चे जब उस टेक्नोलॉजी से एक्सपोज होते हैं तो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स पे क्या फर्क पड़ता है. हम इसको अलग डायमेंशन में साइकोलॉजी के अंदर भी पढ़ सकते हैं. हम ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से भी इस सेम इशू को देख सकते हैं. ठीक है, तो ये जरूरी है कि हम जब भी अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को फाइनलाइज करें, उसके बारे में उसको आइडेंटिफाई करें, उसके बारे में सोचें, उसको फाइनलाइज करें, तो ये जांच लें कि वो रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो सिग्निफिकेंट
है या नहीं है, रेलेवेंट है या नहीं है। नंबर 2 इज ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी से मतलब ये है कि यदि आप कोई काम पहले से हो रखा है और उसी की यदि मान लीजिए कॉपी करते हैं, ठीक है, वो प्लेजरिज्म के अंतर्गत आता है, वो एक अलग बात है कि उसके अंदर आपके पास में वो एक ऑफेंस की तरह ट्रीट किया जा सकता है। अपने माइक को कंट्रोल करें। ऑर्गेनाइजर्स प्लीज ध्यान दें यदि इस तरह कोई वो आवाज ईडी के डर के मारे जा रहे हैं ना यार, वो जैसे कि इस वक्त अगर कोई जिसको राजनीति का शौक है उसको भी कांग्रेस में आराम से उसको अच्छा पद मिल जाएगा। अरे भाई, आप इसका रोक पाओगे? हाँ, अगली बात आती है ओरिजिनलिटी की। अब देखिए, मान लीजिए कि आप किसी पहले से किसी के द्वारा किए गए काम को रिप्रोड्यूस करते हैं, उसको एज इट इज रिप्रोड्यूस करते हैं, या उसको थोड़ा सा पैराफ्रेजिंग करके रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, या आप उसमें कुछ फैब्रिकेशन करके रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी जो प्रैक्टिस है, नंबर 1, ये सब अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं। तो ये कभी एक अच्छी रिसर्च हो ही नहीं सकती, क्योंकि अभी जो हमने पैरामीटर्स की बात की थी रिसर्च के, उनमें उसमें हमने बात की थी कि बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है रिसर्च का कि रिसर्च मस्ट फॉलो द एथिकल प्रिंसिपल्स। नंबर 2, यदि वो ओरिजिनल नहीं है तो वो हमारा जो पहले से जो हमारा ज्ञान है, हमारा जो एग्जिस्टिंग डोमेन ऑफ नॉलेज है, उसके अंदर कुछ भी नया कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी। तो जितने भी रिसोर्सेज, जितना भी मैन पावर हमने उसके अंदर इन्वेस्ट किया, वो सारा का सारा जो है हमारा यूजलेस चला जाता है, ठीक है। तो कोई भी रिसर्च की यदि आप शुरुआत करते हैं और आप अपने रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो ये सदैव ध्यान रखें कि आपका काम किसी न किसी पैमाने पर नया होना चाहिए। और आपको, जब आप रिसर्च के रिलेवेंस के बारे में लिखोगे, तो आपको ये क्लियरली स्टेट करना है, उसके अंदर क्लियरली बताना है कि हाउ योर वर्क इज डिफरेंट एंड हाउ योर वर्क इज ब्रिजिंग द रिसर्च गैप इन एग्जिस्टिंग लिटरेचर और एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो ये बहुत जरूरी है कि एक अच्छी यदि रिसर्च प्रॉब्लम है तो उसकी चारित्रिक विशेषताओं में ये बहुत जरूरी है कि वो नई होनी चाहिए, है ना, वो मौलिक होनी चाहिए। जब हम फिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो जब एक पीएचडी रिसर्चर के रूप में आप जब अपनी पीएचडी के लिए जब रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके और उसको फॉर्मुलेट करके कंसोलिडेट करने की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो पहले जांच लेना चाहिए कि हम कहीं ओवर एम्बिशियस तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है, हम कहीं बहुत ज्यादा अंडरग्रेडेड वर्क तो नहीं कर रहे हैं। हमारा वर्क ऐसा होना चाहिए जो हमारे कॉम्पिटेंस को रिफ्लेक्ट करे, हमारी क्षमता को रिफ्लेक्ट करे, ठीक है, जो हमारे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में हो पाए, जो एग्जिस्टिंग टाइम फ्रेम के अंदर हो पाए, ठीक है। यदि आप इन सब बातों का ध्यान नहीं रखोगे, तो या तो उस स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में वो रिसर्च हो ही नहीं पाएगी, और कई बार ऐसा होता है कि यदि आप एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम लेके नहीं आगे बढ़ोगे, तो रिसर्च यदि आपने मान लीजिए कि रिसर्च रिपोर्ट या थीसिस आपने तैयार कर भी ली, तो फिर वो कोई एक अच्छा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए नहीं होगा। तो कोई भी एक अच्छी शोध समस्या के लिए ये जरूरी है, उसका उसका सिग्निफिकेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, उसका रेलेवेंस होना चाहिए, उसके अंदर ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, और जब हम उसको करने की ओर आगे बढ़ें तो ये तय होना चाहिए कि हमारे पास हमारा जो कॉम्पिटेंस है, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, टाइम है, उसके अंदर हम उस शोध को कर पाए। ये सब हमें पहले से ध्यान रखना चाहिए जब हम हमारी रिसर्च प्रॉब्लम जो है उसको फाइनलाइज करें कि भाई अब इसी पर हमें काम करना है। उससे पहले ये सारी की सारी बातें हो जानी चाहिए। अब देखिए, सोर्सेस क्या हैं। हर एक जो स्टूडेंट होता है
जब वो पीएचडी के अंदर एडमिशन लेता है तो उसके सामने जो सबसे पहली समस्या आती है वो ये आती है कि ऑन विच टॉपिक आई शैल गो फॉर रिसर्च, कौन से टॉपिक पे मुझे शोध करना चाहिए। ठीक है, और ये विशेष तौर पे जो जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारे बच्चे जिस एनवायरनमेंट से आते हैं, वहां पर ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और हम ये सोचते हैं कि हमें कोई रिसर्च का टॉपिक दे दे, कोई गाइड है या कोई नोन है जो रिसर्च में थोड़ा ठीक ठाक जानता है, वो हमें कोई टॉपिक दे दे तो हम उस पर रिसर्च कर लें। दिस इज टोटली अ रॉन्ग ओरिएंटेशन। ये पूरी तरह से एक गलत ओरिएंटेशन है। ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो आपके अंदर स्वयं उसके उसके प्रति, उसको जानने के प्रति, उसके सॉल्यूशंस के प्रति यदि रुचि पैदा नहीं होती है तो फिर वो कोई रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो आपके लिए कभी बढ़िया नहीं हो सकती। तो रिसर्च प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन रिसर्चर स्वयं करता है। ठीक है, ये केवल इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कई बार क्या होते हैं कि कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर जरूर ऐसा होता है कि रिसर्च प्रॉब्लम आपको दी जाती है और उसके ऊपर एक्सपर्ट्स को कॉल किया जाता है कि भाई इस पर कौन काम कर सकता है। दैट इज अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर। बट एज यू आर पीएचडी स्टूडेंट्स, आपके केस में ये होना चाहिए कि आपके स्वयं के स्तर पर शोध समस्या का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, फॉर्मुलेशन होना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि आपको ये ध्यान रहे कि आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसके सोर्सेस कहाँ हैं। ठीक है, यदि आपको ये बात अच्छे से समझा दी जाए, आपकी प्रैक्टिस में ला दी जाए, तो शायद हो सकता है कि फिर अपने अपने रिसर्च टॉपिक को डिसाइड करने से पहले आप किसी के पास जाओगे नहीं और आप किसी से ये रिक्वेस्ट नहीं करोगे कि आप मेरे को मेरा रिसर्च जो है टॉपिक वो बता दीजिए या वो फाइनल कर दीजिए, क्योंकि ये आएगा आपके भीतर से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सोर्सेस क्या हो सकते हैं। पर्सनल एज वेल एज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। आप में से जितने भी बच्चे अभी इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं वो सारे के सारे बच्चे मैं मानता हूं कि 20 साल की उम्र या उससे ऊपर तो होंगे। तो निश्चित रूप से आपके बहुत सारे पर्सनल और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस लाइफ को लेकर रहे होंगे। ठीक है, वो पर्सनल और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जो है ये बहुत मायने रखते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आप छोटे बच्चे हैं, है ना, और आप अपनी नानी से बहुत अटैच्ड हैं और अचानक आपने देखा कि आपकी नानी जो है वो बीमार पड़ गई। आपको पता लगा कि आपकी नानी को कैंसर है। आप समझते नहीं हो कैंसर क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा नहीं पता उसके बारे में, आप थोड़ा थोड़ा जानते हो, आपकी उम्र कोई 10-12 साल होगी, है ना। अब आपने देखा कि उस कैंसर की वजह से आपकी नानी की तबीयत खराब होती जा रही है और डॉक्टर्स को हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नानी की हेल्थ में ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। और फिर आप देखते हैं कि एक दिन नानी आपको छोड़ के चली जाती है। ठीक है, आप हालांकि आप बच्चे हैं, लेकिन आपके दिमाग में एक बात धीरे धीरे घर कर रही है कि मैं हो सकता है कि आपको ये चीज प्रेरित कर दे कि मैं बड़ा होके इस कैंसर की बीमारी का एक्सपर्ट बनूंगा और मैं दूसरों की नानी को इतना जल्दी नहीं जाने दूं। इस तरह से सीडिंग होती है, इस तरह से हमारे दिमाग में रिसर्च प्रॉब्लम की सीडिंग होती है, बीजारोपण होता है। ठीक है, अब वो जैसे जैसे वो उम्र लेगा और मान लीजिए बाय द वे ही इज गोइंग फॉर साइंस स्टडीज और द मेडिकल स्टडीज, ही माइट हैव द सेम दिस नोशन इन हिज माइंड and then finally he might go for the same kind of research later on. अब दूसरी बात आती है, that is critical appraisal of literature and previous research. बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप शोध के बारे में सोचें और आप शोध के एक ब्रॉड एरिया के बारे में सबसे पहले डिसाइड करें कि मेरा जो शोध है वो इस व्यापक जो समस्या है उससे संबंधित होगा, है ना। फिर आप उससे संबंधित जो काम हुआ है उसको आप देखें सेकेंडरी सोर्सेज के रूप में। आपको जो भी अवेलेबल जो आर्टिकल्स हैं, बुक्स हैं, ठीक है,
आप उनको देखें, लिटरेचर का आप रिव्यू करें, क्रिटिकल अप्रेजल करें, है ना, और जो भी पहले शोध हो चुके हैं उनको गहराई से समझें। यदि आप इन सबको समझने की कोशिश करोगे तो आपकी नजर में दो चीजें आएगी, एक कि मैं जिस दिशा में सोच रहा हूं उसके इर्द गिर्द क्या काम हुआ है, और दूसरी चीज आपके मस्तिष्क में आएगी कि क्या अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, जब आपको ये पता लगेगा कि आप जिस एरिया पर रिसर्च करना चाहते हैं उसमें ये काम अभी तक नहीं हुआ है, इस पर काम किया जा सकता है, ठीक है, तो वहां से आपकी रिसर्च प्रॉब्लम जो है, ठीक है, वो धीरे 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 शेप लेना शुरू करेगी, क्योंकि आपने एग्जिस्टिंग लिटरेचर में और प्रीवियस रिसर्च का मूल्यांकन करके उसको खंगाल कर आपने रिसर्च में गैप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी है, और वो रिसर्च गैप कहीं ना कहीं आपके रिसर्च इंटरेस्ट के साथ में मैच कर रहा है। तो यहां अब धीरे धीरे संभावना बनेगी कि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे शेप लेने लगे। अब आप ये देखते हो कि उस पर्टिकुलर एरिया पे, क्योंकि अब आप बहुत ब्रॉड एरिया से आप थोड़ा नैरो हो गए हो, अभी आप कंप्लीटली नैरो नहीं हुए हो, लेकिन अब थोड़ा आप अपने एरिया पे और आपका कंफर्मेशन बढ़ा है। अब आप क्या करेंगे कि एग्जिस्टिंग थियरीज उस तरह की प्रॉब्लम को डील करने के लिए, है ना, एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम नहीं, मैंने शब्द यूज किए हैं कि उस तरह की प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए अब तक लिटरेचर में किस तरह की थियरीज जो है ना, वो अवेलेबल है। आप जब इन एग्जिस्टिंग थियरीज का मूल्यांकन करते हैं, हो सकता है कि किसी थियरी पर आपको, अब जब आपने एरिया थोड़ा आइडेंटिफाई कर लिया, अब हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर थियरी पर आपके काम करने की इच्छा करे कि मैं जिस रिसर्च गैप की बात कर रहा हूं वो रिसर्च गैप इस थियरी के इस एस्पेक्ट से रिलेटेड है, इस थियरी में उसके बारे में इस चीज का अंदेशा, इस चीज का इशारा मिलता है। तो एक तो ये हो सकता है कि क्यों न मैं इसको शोध के आधार पर जांचने की कोशिश करूं कि ये थियरी जो है ये इस एस्पेक्ट पर कहां तक खरी उतरती है। ठीक है, तो ऐसे केस में आप डिडक्टिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हो। ठीक है, अब यहां पर क्योंकि आप निगमनात्मक उपागम से आगे बढ़ रहे हो, आपके पास ऑलरेडी थियरी बैकिंग है, और आप क्या कर रहे हो, आप उस थियरी बैकिंग के जो 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 एस्पेक्ट्स हैं, आप उनको बहुत सारी विशिष्ट दशाओं के अंदर टेस्ट करने की कोशिश करोगे, तो यू आर गोइंग टू फॉलो डिडक्टिव अप्रोच। आप इसके केस में निगमनात्मक उपागम के साथ आगे बढ़ोगे। अब देखिए, दूसरी चीज ये है कि आपने रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, एग्जिस्टिंग थियरीज को खंगाला, और आपको ये पता लगा कि जिस एस्पेक्ट को लेकर आपके दिमाग में सवाल उठ रहे हैं, जिस एस्पेक्ट को लेकर आपके दिमाग में रिसर्च प्रॉब्लम क्लिक कर रही है, उस पर अभी ज्यादा काम हुआ नहीं, और आप जो है वो अब धीरे धीरे ये प्रयास कर रहे हो कि मैं इसके ऊपर थियरिटिकल जो फ्रेमवर्क को तैयार करने जा रहा हूं। तो हो सकता है कि आपकी रिसर्च फंडामेंटल रिसर्च की तरफ मुड़ जाए, और आप उस समय इंडक्टिव अप्रोच के साथ, आगमनात्मक उपागम के साथ आगे बढ़ो। ठीक है, ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूं ये सब के सब स्रोत हैं कि आप रिसर्च प्रॉब्लम तक पहुंचोगे कैसे। ठीक है, फिर जैसे मान लीजिए कि सोशल साइंस में हमारे सामने बहुत सारे तरह के सोशल इश्यूज होते हैं। ठीक है, कई बार वो सोशल इश्यूज जो होते हैं जिसके कारण सोसाइटी में कई प्रकार के डिस्कम्फर्ट पैदा होते हैं, कई बार आपके दिमाग में ये चीज आती है कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, या फिर आप देखो कि इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जा चुके हैं, प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम एड्रेस नहीं की जा सक रही है। इसके पीछे क्या मुद्दे रहे होंगे, कौन सा ऐसा डायमेंशन है
जो अभी तक हमने टच नहीं किया और जिसको टच करे बिना हम इस सामाजिक समस्या को कम करने की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो आपका शोध जो है वो इस तरह से किसी भी जो सामाजिक मुद्दे है उसको लेकर भी शेप ले सकता है। तो आप जो है अपनी रिसर्च की Sir, I have फॉर्मुलेशन, a question. just a minute, I'll take 1 minute and I'll answer your question, right? Okay, okay. All right, sir. Sir, thank you. So it is very important that uh, it is possible that our research problem is rooted in the social issues which we are encountered with, right? एक और एस्पेक्ट आता है एक्सपोजर टू फील्ड सिचुएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हमारे सामने बहुत सारे फील्ड सिचुएशंस होती है जिनसे हम गुजर चुके होते हैं, और ये बहुत सारी फील्ड सिचुएशन कई बार हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस का पार्ट होती है, और कई बार हम अचानक इनसे एनकाउंटर करते हैं। तो ये लेटर ऑन हमारा जो है वो पर्सनल एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के अंदर जुड़ती है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि हम किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से जब हमारा जुड़ाव होता है और जब हम देखते हैं कि वो इंस्टीट्यूशन किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह के इश्यूज को लेकर वहां पर रिसर्च की जाती है, जब हम वहां के लोगों की रिसर्च को देखते हैं, वहां के रिसर्च प्रेजेंटेशन सुनते हैं, तो भी कई बार ऐसा होता है कि जो रिसर्च प्रॉब्लम है ना, हम कहीं ना कहीं उसके मूल को वहां से उठाते हैं। हाँ, अब बोलो बेटा, क्या क्वेश्चन था, बताइए। हाँ बताइए, क्या क्वेश्चन था। Yes, sir. As you are showing this slide, and it is again you are adding this point personal and as well as practical experience. या सर, अगर हम ऐसे हमारे पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं बट उनको कौन ऑथेंटिक मानता है? लाइक हम लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है आई ना गॉट योर आई गॉट योर पॉइंट। सर? ठीक है, सर, योर पर्सनल एक्सपीरियंस इज नॉट योर रिसर्च प्रॉब्लम। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? okay. Okay, it This is is different. only this is only seeding in your mind that this issue is important. ठीक है, who is Only going? it is just ending up to the importance because like I have so many stories or my practical personal experiences I have, Yeah, but yeah, I can't yes, say yes. ki that is one of the research problems. For why should you think in that line? Listen to Sir, me. See, if you have many personal and practical experiences, right? yes, I sir. have given you one example also, right? Sir. So suppose your personal experiences are later on, you know, associated with your domain of specialization. Suppose, ठीक है, Sir. आपके कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं। हो सकता है कि बाद में जब आप बड़े हो जाओ और आप जब अपनी हायर स्टडीज में जाओ और आप जब किसी एक एरिया में स्पेशलाइजेशन की ओर आगे बढ़ो, सपोज you are taking economics as your main subject, you are doing economics honors in graduation, and then post graduation in economics, and then you are thinking about the PhD. Sir. Getting my point? Yes, sir. So Getting. you have thousands of personal and practical experiences. Out of those, there can be few experiences which are related to your domain of specialization. Got my point? Right, sir. From there is a chance, or there is a possibility that you might have some orientation about your research problem, right? So there is no question to justify your personal experiences or to establish your personal experiences as relevant, as significant. No need for that, right? The personal experiences and practical experiences only and only seeding in your mind an area of research, that's all. But when you have a research problem,
then you have to establish relevance, you have to establish the originality aspect of it, right? So your personal experiences Right, sir. Right, sir. definitely, I got you, sir. definitely. No, it is just apart than that. Yes, sir. Yes, yes. And this is not the only source. See, literature Sir. review is also a source. Previous the research and existing theories when you are reading, then also you might get a click for a particular area of research. Your understanding about the social issues, that can be a startup for your this research problem, right? The institution where you are admitted or where you have studied might give you some direction for the research or for formulating a research problem. I mean, see, jab ek student, Understood, sir. Yes, sir. I'm telling a different thing. When a student is completing masters, right? So two things he is having. One, that is knowledge about subject, deeper knowledge about one subject, and peripheral knowledge about many other subjects, right? And second thing is that he is having a long experience of life also. Two things are there, right? These two things will decide the area of interest. ठीक, जब एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होगा, ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं ब्रिजअप करने की कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं उसको मैच करने की कोशिश करेगा विथ द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, राइट? जब वो उसको एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के साथ में जोड़कर देखेगा, ठीक है, और वो उसको जो भी एक रॉ मटेरियल उसके दिमाग में है, जब वो उसको सब्जेक्ट के डोमेन में लेकर और जब साइंटिफिक तरीके से देखेगा, तो धीरे धीरे हो सकता है कि एक रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो दिमाग में शेप करने लगे, ठीक है? जब उस रिसर्च प्रॉब्लम वो शेप करने लगेगी और जब उस रिसर्च प्रॉब्लम के जितने भी जो एस्पेक्ट जिनकी चर्चा हमने पिछली 2-3 स्लाइड्स में की, जब उन सारे एस्पेक्ट्स पे उसका मूल्यांकन हो जाएगा, तो हो सकता है कि नाउ वी आर गोइंग फॉर फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम एंड देन कंसोलिडेटिंग इट, राइट? सो दिस इज द एंटायर स्टेप. मैंने बात जहां से शुरू की थी, अब मैं उस मुद्दे पे आता हूं. मैंने कहा था कि रिसर्च प्रॉब्लम जनरली एक पीएचडी के शोधार्थी के लिए वो नहीं होनी चाहिए जो कोई उसको दे दे, बल्कि रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो स्वयं उसके दिमाग में आनी चाहिए, ताकि वो उस काम को करने के लिए टेम्प्टेड रहे, वो उस काम को बोझ के रूप में ना ले, बल्कि उसका पैशन, इंटरेस्ट है ना, वो एक डायरेक्शन में जुड़े, तो फिर वो रिसर्च में ज्यादा गंभीरता के साथ काम करे. So here our experiences are working, sir, because to find out the problem, research problem, our experiences are going to help us. Might be. I mean, this is one of the source. Select the problem. Yes, yes. Yeah, this is one of the source, right? And Yes, see, yes, sir. the raw experiences need to be polished with your this area of specialization, right? It is not that the raw experiences will become the research problem. Never. ये कभी नहीं हो सकता है, ठीक है? You need to polish those experiences, those areas of interest with your specialization. Then only it can become a research problem, right? Yes, sir. We have to gain mastery, sir. Yes, sir. Yeah. And see, there are three types of research problem generally we classify. One, that is theoretical research problem. Such type of research problems, lead to the fundamental research. इस तरह की जो शोध समस्याएं होती है ना, जिनको हम फॉर्मुलेट करते हैं थियोरेटिकल रिसर्च प्रॉब्लम्स, वो बेसिकली मूलभूत शोध की तरफ ले जाती है हमको. Such problems contribute to overall information and knowledge in an area of study. है ना, एक नया जो ज्ञान जुड़ता है, बहुत सारी बार नई थियरी, नए लॉज, है ना, नए तरह के कॉन्ट्रीब्यूशंस आते हैं. These kinds of research problems are exploratory in nature, है ना. इनकी प्रकृति ये होती है कि थियोरेटिकल रिसर्च प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो बाय नेचर एक्सप्लोरेटरी होती है, ठीक है. एंड टू प्रोवाइड बेसिक डेफिनेशंस ऑफ अ प्रॉब्लम
overarching the nature and or the areas of informational gaps, है ना। ये तो बहुत जरूरी है कि आप एग्जिस्टिंग गैप को ब्रिज अप करो, ये तो बहुत बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो जो ओवरआर्चिंग गैप्स है, ठीक है, वो आपको पता लगेंगे कि भाई यहाँ पर ये समस्याएं हैं, और इन समस्याओं के लिए हमें हमारे पास में एग्जिस्टिंग डोमेन ऑफ नॉलेज के अंदर हमारे पास में फंडामेंटल जो नॉलेज है वो हमारा नहीं है। तो बहुत सारी रिसर्चेज जो हैं, है ना, वो जो है आपको फंडामेंटल रिसर्च की तरफ ले जाती है। बहुत सारी रिसर्च प्रॉब्लम्स, इस तरह की रिसर्च प्रॉब्लम्स जो होती हैं, उसके आधार पे जब हम रिसर्च क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स डिजाइन करते हैं तो उसके साथ में हाइपोथेसिस अटैच्ड नहीं हुआ करती है। क्यों? क्योंकि ये जो शोध प्योर है है, प्योर रिसर्च है, यस सर, है ना, ये प्योर रिसर्च है। इसके अंदर आप rather than your research outcome will become the hypothesis for the coming researches, right? Now the second is applied research problems, ठीक है। कुछ रिसर्च प्रॉब्लम्स होती हैं जो व्यवहार परक होती हैं, अप्लाइड रिसर्च प्रॉब्लम्स के रूप में देखते हैं हम उनको। सच प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व द प्रैक्टिकल यूज ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। बेसिकली बहुत सारी बार ये जो रिसर्चेज होती हैं, दोज आर डिडक्टिव इन नेचर, है ना, ये निगमनात्मक उपागम के साथ की जाने वाली रिसर्चेज होती हैं। डिडक्टिव अप्रोच के साथ में इन पर काम किया जाता है। तो ये जो अप्लाइड रिसर्च प्रॉब्लम है, सॉरी अप्लाइड रिसर्च प्रॉब्लम्स जो हैं, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो भी हमारा सब्जेक्ट को लेकर हमारा जो भी नॉलेज है, हमारी जो भी थियोरेटिकल बैकिंग है, हम उस थियोरेटिकल बैकिंग का यूज किस तरह से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कर सकते हैं, उस नेचर की रिसर्च होती है अप्लाइड रिसर्च प्रॉब्लम्स की जब हम बात करते हैं तो, ठीक है। और जब हम बात करते हैं एक्शन रिसर्च प्रॉब्लम की, तो देखिए बहुत हद तक एक्शन रिसर्च प्रॉब्लम जो है उसमें और अप्लाइड रिसर्च प्रॉब्लम में हमें थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग मिलती है, लेकिन ये पूरी तरह से डिफरेंट है, ठीक है। हमें लगता है कि इट इज वेरी सिमिलर टू अप्लाइड रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक, बट दीज प्रॉब्लम्स आल्सो एम टू प्रोवाइड द सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम्स। तो ऐसा लगता है कि ठीक है, ये भी जो है ये अप्लाइड रिसर्च जो है प्रॉब्लम्स वैसी ही हैं, बट आर टिपिकली मोर टाइम सेंसिटिव इन नेचर, ठीक है। ये बहुत ज्यादा टाइम सेंसिटिव होती है, क्योंकि एक्शन रिसर्च प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसमें हम ये देखते हैं कि उसमें एक कोई भी मान लीजिए एक काम जो है वो चल रहा है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, उस ऑनगोइंग प्रोसेस को आपने बीच में इवेलुएट किया, ठीक है, आपने इवेलुएट किया, आपको उसके अंदर बहुत सारी जो आपने जिन एस्पेक्ट्स पे काम किया वहां पर आपको बहुत सारी कमियां मिली, बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स की गुंजाइश मिली। आपने क्या किया, उन इंप्रूवमेंट्स को सजेस्ट किया, तो उस प्रोग्राम में उस इंप्रूवमेंट के बाद में क्या हुआ, फिर वो आगे बढ़ा, ठीक है। तो ये जो एक्शन रिसर्च है, ठीक है, ये टाइम सेंसिटिव होती है ना, कि यदि प्रोग्राम ही कंप्लीट हो गया तो फिर तो जो इवैल्यूएशन हो रहा है दैट विल नॉट कम इन एक्शन रिसर्च, ठीक है। एक्शन रिसर्च प्रॉब्लम्स कैन आल्सो बी वन component of a larger reflective process, one component of a larger reflective process, ongoing process जो है उसका एक component है that combines ongoing research, analysis and action। तो ये तीन तरह के रिसर्च प्रॉब्लम्स लेकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अभी हमारे ऊपर है कि हम किस तरह के, हमारी कॉम्पिटेंस क्या है, हम किस तरह के रिसर्चर हैं, हमारी रिसर्च प्रॉब्लम जो है जो हमारे दिमाग में है, ठीक है, वो किस तरह की है। तो आप ये डिसाइड करेंगे उसके आधार पे कि आपकी जो रिसर्च है वो थियोरेटिकल रिसर्च होने वाली है, तो फिर आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम्स है वो थियोरेटिकल होंगी, है ना। तो इस तरह ये आप जब एक रिसर्च प्रॉब्लम आपके दिमाग में आएगी तो धीरे धीरे जब आप उस पर काम करोगे तो फिर आपको इस बात का पता लगेगा कि आप किस तरह की रिसर्च प्रॉब्लम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह की रिसर्च आपकी होने वाली है। अब हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। अब ठीक है, हमने थियोरेटिकल बातें कर ली, अब थोड़ी सी प्रैक्टिकल बातें करते हैं, है ना।
A good research problem is narrowly focused and carefully defined. ये बहुत जरूरी है एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम के लिए कि वो बहुत पिन पॉइंटेड होनी चाहिए, बहुत पिन पॉइंटेड, नैरोली फोकस्ड, बहुत पिन पॉइंटेड होनी चाहिए एंड केयरफुली डिफाइंड, और बहुत ही ध्यान से परिभाषित होनी चाहिए। ये तभी हो सकता है व्हेन यू हैव अ डीपर क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम। उसके बिना ये संभव ही नहीं है, और इसके बिना कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो ये मान लीजिए कि गुणवत्ता के स्तर पे अच्छी नहीं हो सकती। अब हम बात करते हैं कि हाउ यू विल अंडरस्टैंड रिसर्च प्रॉब्लम, है ना। आपने जैसे मान लीजिए, क्योंकि जैसे मैंने अभी बात कहा, जिसपे एक बिटिया ने सवाल भी पूछा था कि आपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस की बात की है ना। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस को मैं कैसे जस्टिफाई करूंगी, उसकी जरूरत नहीं है। जस्टिफिकेशन आपको आपकी रिसर्च का देना है, ना कि उस रिसर्च के पीछे जो सीडिंग एस्पेक्ट है उसका। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे वही चीज यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हाउ यू विल अंडरस्टैंड रिसर्च प्रॉब्लम, कैसे समझोगे, थ्रू योर डिसिप्लिनरी बैकग्राउंड। ठीक है, आपने जिन चीजों को एक लेमैन की तरह समझा, एक्सपीरियंस किया, ठीक है, अब आप क्या करोगे कि उसको एक डिसिप्लिनरी बैकग्राउंड के अंदर आप उसको अब लेंस करोगे। ठीक है, तो जब आप किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को डिसिप्लिनरी बैकग्राउंड के अंदर यदि आप तैयार करोगे, तो धीरे 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 वो एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम जो है उसके रूप में तैयार होने लगेगी। ठीक है, अब हम क्यों ये बात करें कि योर डिसिप्लिनरी बैकग्राउंड। आज की तारीख में सब लोग कहते हैं कि रिसर्च तो इंटरडिसिप्लिनरी होती है, मल्टी डिसिप्लिनरी होती है। बिल्कुल होती है, हम भी कहते हैं इस बात को, लेकिन फिर ये बात क्यों आई, थ्रू योर डिसिप्लिनरी बैकग्राउंड। ये इसलिए बात आई सो दैट यू कैन कैपिटलाइज ऑन व्हाट आर ऑलरेडी नोन एंड लर्न्ड, ताकि आप जो है उसका इस्तेमाल कर सको जिसमें आपने पहले से बहुत ज्यादा समय और रिसोर्सेस इन्वेस्ट कर दिए हैं। आपने एक स्पेशलाइजेशन जो है उसके अंदर ट्रेनिंग ले ली है। इसलिए जरूरी है कि आपका जो डिसिप्लिनरी बैकग्राउंड है, ठीक है, वो बिल्कुल आपके शोध के सेंटर में रहना चाहिए। ये कभी भी आपके शोध को मल्टी डिसिप्लिनरी होने से नहीं रोकता है। ठीक है, add multidisciplinary perspectives on this with keeping your domain at the center, है ना? अपने डोमेन को सेंटर में रखिए, because you have deeper understanding about your domain. So capitalize your knowledge, capitalize your skills while you are this formulating research problem for your research. Then why do you are interested, है ना? This is very important question. Why do you are interested in? आप क्यों उसमें उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को देखना चाहते हैं? ठीक है, अब देखिए, आपके जब आपके जो पर्सनल और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, ठीक है, तो उस समय आपको ये नहीं पता था कि आगे जाके, जैसे आप मान लीजिए कि आप इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी होंगे, या मान लीजिए आप ज्योग्राफी के विद्यार्थी होंगे, या साइकोलॉजी के विद्यार्थी होंगे, या आप मान लीजिए अकाउंट्स के विद्यार्थी होंगे। ठीक है, तो आपको उस समय जब आपके अनुभव रहे होंगे तब ये अंदेशा नहीं रहा होगा कि आगे जाके आपका स्पेशलाइजेशन क्या होने वाला है। ठीक है, लेकिन आज भी आप उन एक्सपीरियंसेस के को लेकर, या आपने जो लिटरेचर में पढ़ा उसको लेकर, ठीक है, कहीं ना कहीं आपने कोई ना कोई अपना इंटरेस्ट एरिया एक्सप्लोर किया है रिसर्च के लिए। ठीक है, द क्वेश्चन इज व्हाई डू यू आर इंटरेस्टेड इन, आप क्यों इंटरेस्टेड है इस पर्टिकुलर में। योर आंसर मस्ट कम फ्रॉम योर डिसिप्लिनरी बैकग्राउंड, है ना। आपका जो भी उत्तर इसके अंदर आए, दैट व्हाई यू आर डूइंग पर्टिकुलर रिसर्च, व्हाई यू हैव सेलेक्टेड पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम, योर answer must come from your disciplinary background. Then only you will able to clarify, and you will make the other people understand about your research problem. Next is identify
what you find in Means you are supposed to say always our topic must be from our like the subject specialization जहाँ से होता है वहीं से होना चाहिए literacy. तो ज्यादा टॉपिक नहीं होता है, टॉपिक नहीं होता है. I like am type working this is problem. no. I am working on migration, right? Yes, I am a geographer. sir. Population scientist also, works on migration. A person from psychological background also works on migration. A person from sociological background also works on migration, right? N Sir. number of people are working on migration. The topic, suppose I'm interested in a particular topic, right? So I will capitalize my knowledge, my learned skills when I will conceptualize my research on migration. माइग्रेशन पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मैं माइग्रेशन पे काम करूंगा तो मेरा जो उस प्रॉब्लम को देखने का आउटलुक होगा, दैट मस्ट बी कंसोलिडेटेड on the ground of my disciplinary background, Yes, sir. so that I can use my potential while I'm That going knowledge, for yes, sir. research. We can implement our knowledge, previous I knowledge. Yes, I can capitalize on it. This Yes, is sir. this is important for me. Thank Then you, sir. identify what you find in literature. This is very important. See, अब आपने जैसे बात करी कि सब पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं या हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, वो तो केवल बीजारोपण हुआ है. बट आफ्टर दैट ट्राई टू फाइंड आउट लिटरेचर. जो मेरे दिमाग में है, क्या काम हुआ है अब तक उस पे, ठीक है, क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ. जो नहीं हुआ उसी पर आपको फोकस करना है, ठीक है. तो अब आप धीरे धीरे क्या कर रहे हो, अपनी रिसर्च प्रॉब्लम जो है, ठीक है, उसको सिस्टमैटिक और साइंटिफिक बना रहे हो, ठीक है. तो आपको ये आप जब एक ब्रॉड एरिया आपके दिमाग में आ गया कि हाँ, इस पे ये मेरे को टेम्प्ट कर रहा है, इस पर मुझे शोध करना चाहिए, ठीक है, इसका मतलब आपने अपने अपने रिसर्च एरिया को एक बड़े स्तर पे आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है. नाउ यू विल गो नैरो, मतलब यू विल गो नैरो डाउन, है ना. एवरी स्टेप यू विल गो नैरो 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 एंड यू विल बी फोकस्ड. लास्टली आप लास्ट में क्या करोगे, बिल्कुल फोकस्ड हो जाओगे, ठीक है. तो अब आप क्या करोगे कि भाई जो मैं रिसर्च प्रॉब्लम मेरे दिमाग में है, जिसको लेकर मैं काम करना चाहता हूं, अब आप ये करोगे कि भाई लिटरेचर जो है वो इसके बारे में क्या कहता है ना, क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है. क्योंकि अभी तक आप रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है आपने, अभी उसको फॉर्मुलेट नहीं किया है, कंसोलिडेट नहीं किया है. ये सारा काम लिटरेचर की बैकिंग पे होगा, ठीक है. और यदि लिटरेचर की बैकिंग बहुत पुअर है ना, जैसे मान लीजिए कई बार हम फंडामेंटल रिसर्च के अंदर आगे बढ़ते हैं तो हम जिस एरिया पे काम कर रहे हैं उस पे काम हुआ ही नहीं, दैट इज टोटली डिफरेंट सिनेरियो. वो एकदम अलग बात होती है ना. अदरवाइज ये लिटरेचर क्या करता है, ये हमारी रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने और हमारी रिसर्च प्रॉब्लम को कंसोलिडेट करने में हमारी मदद करता है. हम फिर बाद में जिस इशू को लेके बात कर रहे हैं, हम उसके पीछे यदि कोई थियोरेटिकल बैकिंग है तो हम उसको इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है. और तब जो जाके हमारी जो रिसर्च प्रॉब्लम जो हमारे दिमाग में कच्चे रूप में थी, वो धीरे धीरे क्या करती है, वो साइंटिफिक आउटलुक लेने लगती है ना. और फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाट रिसर्च गैप इज एड्रेस्ड. अब धीरे धीरे आप जब आप धीरे धीरे फोकस्ड होते जा रहे हो तो ये क्वेश्चन पॉप करना चाहिए आपके दिमाग में, दैट व्हाट हैज नॉट बीन डन टिल नाउ. क्या नहीं हुआ अभी तक, ठीक है. क्या मेरी रिसर्च प्रॉब्लम उस एस्पेक्ट को एड्रेस कर रही है जो नहीं हुआ, है ना. ये आप खुद जज करोगे, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च गैप यू आर फुलफिलिंग, ठीक है. तो यहां से क्या होगा कि आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है ना, वो कितनी रेलेवेंट है वो एस्टेब्लिश होगा. उसकी सिग्निफिकेंस और उसकी रिलेवेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि वो
एग्जिस्टिंग लिटरेचर जो लिटरेचर है उसमें जो गैप है उसको फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, सो नेक्स्ट विल कम व्हाट सिग्निफिकेंस डज इट कैरी। तो फिर आप ये देखोगे कि भाई ठीक है, ये लिटरेचर गैप है, और उसके बाद आप जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे कि इन व्हाट वे योर रिसर्च प्रॉब्लम इज सिग्निफिकेंट एंड रेलेवेंट। ठीक है, देन यू विल गो फॉर फर्दर रिसर्च। जब इतना काम कर लोगे तब फिर आप आगे रिसर्च के लिए आगे बढ़ोगे। अब देखिए, जब हमने इतनी बातें कर ली है ना, काफी हद तक हम रिसर्च प्रॉब्लम को फाइनलाइज करने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब जो बात आती है वो ये आती है कि रिसर्च प्रॉब्लम नीड टू बी सॉल्व्ड साइंटिफिकली। अब जो कच्चे रूप में मैंने आपसे बात की थी ना कि हमारे अनुभव, हमने जो पढ़ा है ना, वो सब तो केवल और केवल एक्सीडिंग का काम कर देते हैं। उसके बाद में हमें जब रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना होता है, जब हमें रिसर्च प्रॉब्लम को कंसोलिडेट करना होता है, तब हम कहते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम नीड टू बी सॉल्व्ड साइंटिफिकली, है ना। और दूसरी चीज क्या आती है, प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम एज वेल एज कंसेप्चुलाइजेशन मैटर्स अ लॉट। अब आप ये देखिए कि आप अपनी रिसर्च जो एरिया को आइडेंटिफाई करने के बाद में एक ब्रॉडर और यूं कहें कि एक क्रूड रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद में जब आप उस पर और काम करते हो तो किस तरह से आप उसका बेहतरीन तरीके से कंसेप्चुलाइजेशन करते हो, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपके शोध की गुणवत्ता क्या होने वाली है। ठीक है, what value your research will carry, that will be decided from here only. Now see, selection of सर, ये research. बात तो आप खाली कंसेप्चुअल रिसर्च की बात कर रहे हैं जो डिडक्टिव इन नेचर है। No, no, तो फिर not necessary. Who अच्छा, said? Who said? ओके सर, Huh? आई I थॉट I लाइक दैट। no, I haven't classified like that. आपने क्यों सोचा ऐसा, बताइए, मैं आपको आंसर देता हूँ। मुझे लगा थ्योरेटिकल है, नहीं, तब आपको आपने क्यों ऐसे लगा? बोला ना, तो अरे आई भाई, थॉट बिकॉज आपने इनिशियली listen, बोला कि listen. डिडक्टिव टाइप है, वी आर गोइंग स्पेसिफिक फ्रॉम जनरल टू वो स्पेसिफिक। वो बात तो हमने केवल एक एग्जाम्पल के रेफरेंस में ली थी बिटिया, हमने कहा लेक्चर थोड़ी उसके ऊपर है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। हम यहाँ बात कर रहे हैं रिसर्च गैप फुलफिलमेंट की, हम यहाँ बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंस की। ठीक है, तो हम तो नहीं बात कर रहे हैं कि भाई ये केवल वही रिसर्च सिग्निफिकेंट है जो डिडक्टिव अप्रोच के साथ की जा रही है, ये बात तो नहीं हो रही यहाँ पे। हम तो ये हाँ कह जी रहे हैं कि सर। रिसर्च प्रॉब्लम जो है दैट मस्ट बी साइंटिफिक, है ना। आप रिसर्च प्रॉब्लम को जितना ज्यादा साइंटिफिकली डिजाइन करोगे उतना ज्यादा आपकी रिसर्च जो है वो वैल्यू कैरी करेगी। उसके बाद जी हम ये सर। कह रहे हैं कि आप चाहे किसी भी एरिया में रिसर्च कर रहे होंगे, ठीक है ना, बी इट साइंस और नॉन साइंस, आपको ये ध्यान रखना है कि योर रिसर्च जो प्रॉब्लम मस्ट बी प्रेजेंटेड वेल, बिकॉज इट मस्ट सर कन्वे दैट व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू डू। ठीक है, वो क्लैरिटी होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, your हाँ research जी सर। problem must make understand others also that what you are going to do. And second thing is that you need to have a a conceptual background for each and every aspect of your research problem. So the conceptualization, must be rigorously done. Rigorously किया जाना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम की। क्लियर? हाँ जी हाउ सर। टू चूज रिसर्च प्रॉब्लम, आप कैसे चूज करते हैं, है ना। इतनी सारी बातें करने के बाद आपको एक बात तो पता लगी होगी कि सबसे पहले हमारे सामने एक ब्रॉडर एरिया होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ना शुरू किया, है ना, आप क्या कर रहे हो, उस सब्जेक्ट के दायरे में बहुत सारी चीजों को सोचते हो। ठीक है, आप जैसे किसी बच्चे से कहोगे कि यार इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, आप कहोगे कौन से एरिया पे शोध करना है, मुझे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स अच्छा लगता है। क्लियर, है ना। या आपने ज्योग्राफी में किसी से पूछा कि किस पे शोध करना चाहते हो, आई विल गो फॉर रिसर्च इन फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, अरे भाई ये तो बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं, है ना। फिर बाद में क्या होता है, नैरो डाउन। ठीक है, विच
which particular subject matter or which particular area in physical geography, तो आप narrow down हुए, ठीक है। फिर एरिया को आपने आपने जब जब आइडेंटिफाई कर लिया, देन अगेन, है ना, what particular aspect of that particular area, again pinpointed, ठीक है। And then with one aspect you are proceeding for research, then focus on issue of interest. In this way we are we are narrowing our this approach. हम बहुत व्यापक से शुरू होके और बिल्कुल पिन पॉइंटेड हो जाते हैं, और जब हम पिन पॉइंटेड हो जाते हैं ना, वहां पर आके ये क्लैरिटी होती है कि व्हाट आवर रिसर्च प्रॉब्लम इज, हमारी रिसर्च जो शोध समस्या है वो क्या है, ठीक है। अब इसका जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ साथ में। जैसे सपोज आपसे किसी ने पूछा कि किस में काम करना चाहते हो, कैसा, मैं तो हेल्थ में करूंगा, ठीक है। अब हेल्थ तो बहुत बड़ा एरिया है भाई, है ना। फिर सेकंड क्वेश्चन, हेल्थ तो बहुत बड़ा है, उसमें किस पे, चाइल्ड हेल्थ पे काम करेंगे, फाइन, बहुत बढ़िया बात है। बट चाइल्ड हेल्थ इज ऑल्सो वेरी वेरी वाइड कैनवास, है ना। अब चाइल्ड हेल्थ भी इतना इतना विस्तारित है उसमें कि माल न्यूट्रिशन पे काम करेंगे। अब माल न्यूट्रिशन में अलग अलग तरह के केसेस होते हैं, एक माल नरिश भी हो सकता है, ओबेसिटी भी होता है, किस पे काम करोगे भाई, है ना। कैसे माल नरिश पे काम करेंगे, का मेजर क्या होगा, व्हाट मेजर, सपोज बीएमआई, है ना, तो बीएमआई पे फिर क्या अंडरवेट लोगे, स्टर्निंग लोगे, या सबको शामिल करोगे, है ना। तो आपने ये चीज देखी कि किस तरह से हम नीचे आ रहे हैं। मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं यहाँ पे। सब जैसे मान लीजिए कि क्या आप किस पे शोध करना चाहते हो, कि साहब मैं तो पॉपुलेशन प्रॉब्लम पे शोध करना चाहता हूं, हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज्यादा है और ये हमारी सारी समस्याओं की जड़ है, ठीक है। फिर आप जब धीरे धीरे और आपकी समझ पैदा होती है और आप जब अपने स्पेशलाइजेशन में आगे बढ़ते हो, तो आपको लगता है कि यार द प्रॉब्लम इज रूटेड इन दिस बिगर फैमिली साइज, है ना। तो एक काम करते हैं, फर्टिलिटी बिहेवियर पे काम करते हैं, ठीक है। आप और नीचे आए, है ना, फिर क्या ये यार फर्टिलिटी बिहेवियर का कौन सा एस्पेक्ट, आई मीन किस एस्पेक्ट को लेके चलना है, जो फीमेल बेबी प्रोड्यूस कर रही है उनके स्टेटस को लेके काम करना है, या जो जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसको लेके काम करना है, या जिस सोसाइटी में हम शोध कर रहे हैं उसके इकोनॉमिक जो लेवल है उसको लेके काम करना है। तब उसको समझ में आता है कि जब हम फर्टिलिटी बिहेवियर की बात करें, ठीक है, या यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट को लेके काम करना है, तो उसको लगता है कि यार ये तो मतलब देयर आर सो मेनी फील्ड्स। फिर वो क्या करता है, और नैरो आता है कि भाई हम तो है ना यूटिलिटी एस्पेक्ट पे काम करेंगे। अब जब वो यूटिलिटी एस्पेक्ट पे आता है तो वो देखता है यार एक बेबी की तो इमोशनल यूटिलिटी भी होती है, इकोनॉमिक यूटिलिटी भी होती है, सिक्योरिटी यूटिलिटी भी होती है ना। जैसे एक बेबी है, ठीक है, अब जैसे मान लो जो पुअर सोसाइटी है उसके अंदर ये होता है कि एक यदि बच्चा पैदा होता है तो उसके एक मुंह और दो हाथ होते हैं, मतलब वो ज्यादा कमाता है कम खाता है ना। तो बेबी इज एन एसेट, ठीक है। तो वहां पे जो इकोनॉमिक यूटिलिटी है वो काफी वहां पे इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक सोसाइटी आपने देखी डेवलप्ड सोसाइटी, उसके अंदर ये होता है कि पेरेंट्स जो हैं इकोनॉमिकली वेल ऑफ हैं, और इवन उनको पोस्ट रिटायरमेंट या यूं कहें कि इन ओल्ड एज आल्सो दे डोंट नीड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, उनके लिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी का कोई मूल्य नहीं है, ठीक है। बट दे फील अदर सिक्योरिटी, ठीक है। तो अदर सिक्योरिटी के लिए जैसे बोलता है ना कि बच्चा बुढ़ापे की लाठी होता है, बेबी जो भी है ना। तो ये यूटिलिटी परसिस्ट करती है, इसलिए वहां बेबी प्रोडक्शन है। हाँ, हो सकता है कि पहले वाले केस की तुलना में यहाँ रेट फर्टिलिटी रेट कम हो। तीसरा आप देखो, जैसे मान लीजिए कि ये दोनों यूटिलिटी नहीं है, ऐसी डेवलप्ड सोसाइटीज जिन्होंने बहुत ज्यादा ओल्ड एज होम्स वगैरह बना लिए हैं, है ना। और ऐसा हो गया कि भाई जो लोग जो एजेड हैं उनको उनके फिजिकल डिस्कम्फर्ट को उन्होंने दूर कर दिया है, ठीक है। तो अब एक इमोशनल यूटिलिटी बन जाती है,
ठीक है, व्हेन यू प्रोड्यूस यू फील दैट इट इज अ माई बेबी, ठीक है, आई विल शेप, है ना, मैं इसको शेप करूंगा, ठीक है। तो ये जो यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट है, ये जब तक रहेगा तब तक बेबी प्रोड्यूस होते रहेंगे, चाहे सोसाइटी जो है वो कितनी भी एडवांस हो, ठीक है। तो आप कौन से एस्पेक्ट पे काम करना चाहते हैं, फिर जब आप एक एस्पेक्ट पे जाएंगे तो फिर उसकी ब्रांचेस मिलेगी आपको। इस तरह धीरे 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 आप क्या करते हो, आप नैरो डाउन होते 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 और एक जगह जाके फोकस होते, ठीक है। और जहां आपका फोकस बनता है वहीं से आपकी रिसर्च प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन होता है, ठीक है। स्टेप्स में जैसे सबसे पहले आइडेंटिफाइंग अ ब्रॉड एरिया, है ना, फिर क्या करते हो आप, धीरे धीरे जब आपने ब्रॉड एरिया आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, ब्रॉड एरिया आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्या करते हो, डिसेक्ट टू सब एरियाज। अब आप उसके सब एरियाज देखते हो, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया उसी को यहां रख के देखो आप, ठीक है। देन सेलेक्ट इंटरेस्ट सब एरियाज। अब सब एरियाज में बहुत सारे हैं, नाउ यू आर गोइंग फॉर दोज एरियाज इन विच यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है। एंड देन आइडेंटिफाई फोकस एरिया एंड कंसोलिडेट। अब आप एकदम वहां पहुंच गए हैं जहां आपको शोध करना है, जहां पर शोध करने के लिए आप यूं कहें कि टेम्प्टेड थे, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, यहां पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम भी हो गया, कंसोलिडेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, सॉरी फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम भी हो गया, एंड कंसोलिडेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम भी हो गया। ये सारा काम करने के बाद आप क्या करोगे, you will raise research questions and formulate objectives, है ना। अब आप क्या करोगे, अब उसको आगे बढ़ाने के लिए जो रिसर्च प्रॉब्लम जिसको आपने फॉर्मुलेट कर लिया है, अब आप क्या करोगे, उसको आगे बढ़ाने के लिए, है ना, क्योंकि आपने जब रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिए तो उसको सॉल्व भी तो करोगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, यू विल रेज क्वेश्चंस, है ना, और यू विल डिजाइन क्वेश्चंस, रिसर्च क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स, है ना, मे बी हाइपोथेसिस आल्सो, ठीक है। एंड देन यू विल ट्राई टू एसेस ऑब्जेक्टिव्स। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, अब हम जब कंसोलिडेशन हो गया रिसर्च प्रॉब्लम का, है ना, बहुत अच्छी तरह से आप जो है वो पिन पॉइंटेड रिसर्च प्रॉब्लम जो है उसको आइडेंटिफाई करके आपने उसको अच्छी तरह से फॉर्मुलेट कर लिया, ठीक है। एंड देन थ्रू द लिटरेचर बैकिंग आपने उस पर पूरी कमांड बना ली, एंड यू हैव कंसोलिडेटेड योर रिसर्च प्रॉब्लम। देन व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करोगे, यू विल कम ऑन रिसर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, है ना। जनरली ऐसा होता है शोध में कि हम या तो रिसर्च क्वेश्चंस लेके आगे बढ़ते हैं या ऑब्जेक्टिव्स लेके आगे बढ़ते हैं, बट इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। वो द कन्वेंशनली सेम सर, नीड्स क्या है वही हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एंड दोज थिंग्स दे ओनली बिकम आवर क्वेश्चंस भी। नहीं, ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चंस आर ऑल टुगेदर डिफरेंट, प्लीज डोंट मेक देम सिमिलर, ये सेम नहीं होते हैं कभी भी, ठीक है ना। अब ये पूरा एक लेक्चर है कि भाई रिसर्च क्वेश्चन क्या होते हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है। दे कैन ओवरलैप बट दे आर नॉट आइडेंटिकल नहीं होते हैं दोनों, ठीक है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, या तो ऑब्जेक्टिव्स लेके चलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के साथ हाइपोथेसिस लाइन अप करते हैं, या रिसर्च क्वेश्चंस के साथ हाइपोथेसिस लाइन अप करते हैं। कई बार आपको कुछ रिसर्चेस ऐसी मिलेगी, जैसे अभी मैंने एक पीएचडी इवेलुएट करी, उसमें दोनों चीजें थी, रिसर्च क्वेश्चंस भी थे, ऑब्जेक्टिव भी थे। तो ऐसा कोई फ्रेम नहीं है कि किसी बच्चे ने यदि दोनों को यूज कर लिया तो आप कहोगे तो ये रिसर्च जो है आउटराइटली रिजेक्ट की जाती है। इट इज नॉट लाइक दैट, है ना। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कन्वेंशन। अब देखिए, आपने जब हाइपोथेसिस को कंसोलिडेट करने के बाद में जब रिसर्च क्वेश्चंस आपने फ्रेम किए या ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम किए, हाइपोथेसिस जो है वो भी निकल के आई आपके एक्सपीरियंसेस और आपके लिटरेचर रिव्यू की बैकिंग से, क्लियर। अब आप ये देखिए कि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम, आपके रिसर्च क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव्स और आपके हाइपोथेसिस ये लाइन अप है या नहीं है, ठीक है। इनके अंदर लॉजिकल एसोसिएशन है या नहीं है। यदि ये एक दूसरे के साथ तारतम्यता नहीं रखती हैं, यदि इनके अंदर एक लॉजिकल बॉन्डिंग नहीं है,
है ना। यदि ये एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से जुड़ाव नहीं रखती हैं तो वो शोध कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम के आधार पर आपके रिसर्च क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स डिजाइन होने चाहिए, और जिस एरिया में आपने 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 रिसर्च प्रॉब्लम का चुनाव किया है, फॉर्मुलेट किया है, कंसोलिडेट किया है, वहीं से संबंधित हाइपोथेसिस होनी चाहिए। तो ऐसा So संभव ही this नहीं है bonding कि only, this हमको bonding between research जस्ट अ question. मिनट, Yes, आप sir. बोलने से पहले आप ये मत सोचिए कि 3 डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं, है ना। ये 3 डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स नहीं है, ठीक है। आप इसको कंपार्टमेंटलाइज मत करिए, इसमें एक से दूसरा और दूसरे से तीसरा जुड़ा हुआ है। रिसर्च प्रॉब्लम जब फॉर्मुलेट हो जाती है तो उससे उससे जुड़े हुए ही रिसर्च क्वेश्चंस डिजाइन होते हैं। अब बताइए क्या कह रहे थे आप? Yes, sir, this bonding between objectives and research problem, this makes me to feel like all are alike only. How come alike? It can make you feel like that, but it is not like that. Yes, sir. ठीक है, ऐसा होता नहीं है। आपको कुछ भी फील हो सकता है लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। रिसर्च क्वेश्चंस आर ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव्स, देयर लैंग्वेजेस आर डिफरेंट, their orientations are different, approach to tackle research questions and objectives are different, they cannot be similar, है ना। ये they can be similar, they वो can't be linked, same, हाँ, linked they होते cannot हैं be तो ऐसा लगता identical. है. Yes, But sir. this ठीक है. but this presentation is not about research questions and objectives, right? I'm just telling that after consolidation of research problem, you come on research questions and objectives, and then followed Yes, by sir. hypothesis, right? In some researches you can suppose you have 3 objectives, your objective 1 is not having any hypothesis, so you can go on second objective. Your second objective might have 2 hypotheses, attach those hypotheses with that objective, and then you can move on third objective, and third objective might have 1 hypothesis, so you can move like this, right? So when you will design the chapterization of your thesis, then this framework will guide you that what will be the chapters of your thesis. And after doing that, you have to go for a selection of appropriate methodology and research methods, right? है ना। अब आपको ये तय करना है कि what will be your research methodology and what will be your research methods. And there must be clear rationale why and how we are proceeding. बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए, हर एक चीज का जवाब होना चाहिए आपके पास में, that what research methodology you are following, then why. ठीक है, what research methods you are using, then the question is why. Need to follow appropriate research methods, be it quantitative, qualitative or mixed methods. ये कोई जरूरी नहीं है कि आपकी शोध जो है अनिवार्यतः है क्वांटिटेटिव ही होनी चाहिए, नो नेवर। ठीक है, आपकी शोध पूरी तरह से क्वालिटेटिव हो सकती है, पूरी तरह से क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। एंड currently in this in all this universities, in everywhere, mixed methods are welcomed. पहले लोग मिक्स मेथड से परहेज करते थे, अब कोई परहेज नहीं है, ठीक है। नाउ पीपल वेलकम मिक्स मेथड्स। हो सकता है कि आपकी रिसर्च के किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को आप क्वालिटेटिवली डील कर रहे हैं, और हो सकता है कि उसी के किसी दूसरे सेगमेंट को आप क्वांटिटेटिवली डील कर रहे हैं। यू कैन गो विथ मिक्स मेथड्स, there is no question now. I mean, nobody can discard your research when you are using mixed methods. See, आपने सब कुछ कर लिया, अब वक्त आता है कि आप इवेलुएट करें कि आपने जो रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करी है, कंसोलिडेट करी है, वो इन सारे तराजू पर खरी उतरती है या नहीं उतरती है। जैसे आप यदि सोना सुनार के पास लेके जाएं
तो वो कसौटी पर रगड़ता है ना उसको, और वो बताता है कि इस सोने में कितनी खोट है। अब आपको अपनी अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को इन तमाम प्रकार के जो पॉइंट्स यहाँ हमने लिस्टेड किए हैं, इनके ऊपर आपको उसको टेस्ट करना है, ठीक है। बिफोर गोइंग ऑन फाइनल रिसर्च, आप एक बार कंफर्म हो जाइए कि आपका फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो साइंटिफिकली बिल्कुल सही है ना। जब आप पूरी तरह से कंफर्म हो जाएं, तब आप आगे बढ़िए। इसलिए एक बार ये पीछे जाके चेक करना वापस, है ना, ये जो डबल चेक है, ये आपकी रिसर्च की क्वालिटी बढ़ा देता है। आप देखिए कि आपने जो रिसर्च प्रॉब्लम ली है, जिसको लेकर आप थीसिस लिखने जा रहे हो, रिसर्च करने जा रहे हो, सबसे पहला क्वेश्चन, इज इट रिसर्चेबल? पहला क्वेश्चन, है ना। आप अपने आप से सवाल करिए और इस सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है। तो यदि कहीं पे कोई ग्रॉस मिस्टेक अभी भी रह गई है, तो आप अभी तक उस स्टेज में हैं जहां पर हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। देन आस्क योरसेल्फ कि आपने इतना लिटरेचर पढ़ा, ठीक है, इतनी रिसर्च देखी, आप जो काम कर रहे हैं वो वास्तव में कहीं ना कहीं जो रिसर्च गैप है उसी को आइडेंटिफाई कर रहा है ना, उसी को पॉइंट आउट कर रहा है ना, ये नोवेल है ना, इसमें ओरिजिनलिटी है ना, देन स्टिल सिग्निफिकेंट, स्टिल सिग्निफिकेंट, ठीक है। आप ये देखिए कि आप जो काम कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आपके आज से 50 साल पहले कोई काम हुआ, उससे प्रेरित होकर आपने काम किया, ठीक है ना। यू मस्ट नो दैट व्हाट इज द करंट सिग्निफिकेंट of your research plan or your research problem. आज मोबाइल टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा प्रचलन में है, ठीक है। क्या आज की तारीख में आप बेसिक टेलीफोन कनेक्टिविटी के आधार पे सोसाइटीज के डेवलपमेंटल स्टेटस को गेज करने का काम करोगे, तो क्या वो रेलेवेंट होगा? क्या नहीं होगा, No, sir. है ना। क्योंकि द गेम हैज बीन चेंज्ड, पूरी तरह से चेंज हो चुका है, ठीक है। द सेकंड थिंग इज क्लैरिटी। आस्क योरसेल्फ that if somebody will ask you that what research you are planning to do and what is your research problem, you must be confident enough to, you know, clearly Answer. explain your research problem. That clarity must be there, right? And lastly, potential to fill research gap. ये होना ही होना चाहिए। आप नोवेल होने के साथ साथ ये रिसर्च गैप फुलफिल करने की पोटेंशियल रखना चाहिए। ये यदि आपने रिसर्च प्रॉब्लम पे काम कर लिया, उसको फॉर्मुलेट कर लिया, लास्ट में एक बार फिर इन सवालों पे जाइए और अपने आप को चेक करिए। एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर द लास्ट स्लाइड, तो अपने माइक्स को कंट्रोल करें प्लीज। See, now we are talking about the summary, what we have done. See, selection of research problem is a systematic and scientific process that we have learned. कि हम यदि रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, उसको फॉर्मुलेट करते हैं, उसको कंसोलिडेट करते हैं, इस सारी प्रक्रिया में हर जगह हम सिस्टमैटिक और साइंटिफिक होने चाहिए। Formulating a good research problem laid down the foundation of directed research. ये बहुत जरूरी है कि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम जो है, ठीक है, that must be clear, that must be good enough, that must be researchable, that must be relevant, that must fill up the research gap. यदि यहां पर सब कुछ बहुत क्लियर है, then it is
definitely, assure that your research will be directed very well. आपका शोध बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा. A good research problem increase the probability of good quality research outcome also. Right? So if your research problem is good, then it is we can assume, or it is probable that your research outcome will also be of good quality, right? And if your research problem is not good, then we cannot even think about the quality of research outcome, right? उस केस में रिसर्च आउटकम की क्वालिटी आ ही नहीं सकती है. ठीक है, आप लोगों ने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. एंड आई होप दैट this will definitely raise your understanding about the research. You people are beginners, so if really you will take help of this lecture, then now you will not ask others that please sir मुझे research का topic बताइए. You people will yourself decide your topic, and you will be proceeding towards formulation of your research problem. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. It would have been a Thank you, sir. 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 Thank you. Welcome. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Welcome, Bitin. Thank you, sir. Thank you, sir, very much. Any questions or any doubt? Still we have time, no problem. If you have doubt, you can ask me, right? Because still it is only 8 o'clock at my place. अभी मेरे यहाँ भी कोई रात नहीं हुई, 8 ही बजे हैं, है ना? तो कोई भी डाउट है तो पूछिए आप. Are organizers around? आप में से ज्यादातर बच्चे कौन से सब्जेक्ट के हैं? सब नॉन साइंस हैं? Sir, I'm from psychology. Sir. Psychology, sir. Hindi literature, political Good. science. Sociology. मैंने यही चीज ध्यान में रख के लेक्चर डिजाइन किया था कि इसमें नॉन साइंस बैकग्राउंड के कई सारे डिसिप्लिन के बच्चे जो हैं वो जुड़ेंगे. ठीक है, उसी चीज को ध्यान में रखे, क्योंकि जो मेरे को ब्रीफ किया गया था तो उसी को ध्यान में रख के और मैंने ये लेक्चर डिजाइन किया था. और आप कोशिश करिएगा कि ये जो लेक्चर है ना, ये आपके लिए फ्रूटफुल हो, है ना? ऐसा नहीं हो कि बस हम 1.5 घंटे बैठे, आपको क्योंकि कॉरम पूरा करना है कि आपको एक वो चाहिए कि हाँ हमारा कोर्स वर्क हमने कर लिया, ठीक है, अब उसके लिए बैठे हों, देखो फिर तो कुछ भी नहीं किया जा सकता. No, sir. Definitely will try to implement it, sir. यदि आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली you are going to proceed towards a good research. Organizers हैं क्या भाई? My goodness. अरे यार, राहुल जी हैं सर. कहाँ है राहुल जी? मैं बार बार पूछ रहा हूँ, ऑर्गेनाइजर्स हैं क्या? और कोई सवाल है तो पूछ लो बच्चों, अच्छा मौका है. सर प्लीज सजेस्ट कि रिसर्च टूल्स क्या होने चाहिए अगर हम लाइक क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, कंपैरेटिव रिसर्च कर रहे हैं एंड इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट साइकोलॉजी, तो फिर उनका बिहेवियर एंड ऑल उनको थोड़ा सा मतलब कैसे रीड आउट करूं? आई एम लाइक अ बिट कंफ्यूज्ड कि बेटा, यस सी, आप तो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो,
Yes, है ना? sir. आपने एथनोग्राफी रिसर्च नहीं पढ़ी क्या? Sir, yes, sir. पढ़ी sir. उसमें टूल भरे पड़े हैं जिनकी बात आप कर रहे हो। Okay, sir. वैसा हाँ, but sir, it is somewhat. I want to work on the skill of the players. तो skills को भी साथ में हमें enhance भी करना है, and थोड़ा सा उसको मैं थोड़ा सा relate करूंगी psychology से भी, like their behavioral study. नहीं, जैसे आप यदि स्किल मेजरमेंट पे जाओगे हाँ जी. तो आपको उसके अंदर क्वांटिटेटिव कंपोनेंट जोड़ना पड़ेगा। Okay, sir. ठीक है, उस केस में आप कैसे मतलब फिर आप कैसे टोटल, क्योंकि आप पहले बिहेवियर की बात कर रहे थे, चलो बिहेवियर को यू कैन डील विद टोटली विद क्वालिटेटिव अप्रोच, बट व्हेन Yes, यू आर sir. टॉकिंग अबाउट स्किल्स, अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स, देन तो Yes. you need to have a yardstick. ठीक है, when issue of yardstick comes, that means you need some sort of quantitative backing also, Quantitative also. है ना? Sir, And sir. see, go with mixed methods where you feel Yes, sir. that choose appropriate tools where you feel that the qualitative approach is fine for a particular aspect. Go with qualitative approach, and where Sir. you feel that this aspect cannot be dealt with qualitative approach, I need to go this quantitative, then go with that, right? But Sir. you should have strong justification what you Yes, are sir. doing. I'm working You on must- that, sir. Yes, you sir. must have justification for that, right? Why you are Sir. doing so, this is very important, right? Yes, sir. Thank you, चलिए, sir. वेलकम। और कोई सवाल? और कोई सवाल? नहीं है?